students, welcome back to online classes of Sony International School. Myself Ajit Rao, and today I will teach you class 8 maths, and our chapter will be chapter number 4, which is cubes and cube roots. So let's start with the exercise. Exercise 4.1. First question is, we have to evaluate the given question. Exercise 4.1. Question number first is evaluate. What evaluate means? Here it is written in power 3. This means we call this 3 cube. देखिए जब स्क्वायर होता था तब आप लिखते थे सपोज a is any number and power 2 हम इसको क्या कहते थे a square, and here it is written power 3. This means a cube. ठीक है, तो ये क्यूब हमारा क्यूब होगा तो पावर कितनी होगी आपकी 3, एंड जब स्क्वायर होगा आपकी पावर कितनी होगी 2. तो a cube means a की power 3. Power 3 means we have to multiply 3 times. We have to multiply 3 times. So 3 3 is 9 and 9 3 is 27. This means 3 cube will give 27. Move to next question. Suppose here it is 0.06 whole cube. 0.06 whole cube. So next question is 0.06 whole cube. We can change this decimal into fraction. 6 upon 100 cube. This means we have to multiply 6 upon 100 3 times. 6 upon 100 into 6 upon 100 into 6 upon 100. The 6 is a 36, 36 is a 216, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is your answer. Okay. We can write this. Denominator में कितने zeros हैं आपके 6. तो 6, 1, 2, 1, 2, 3. 0.000216. We can also write it 0.06 whole cube is equal to 0.000216. ठीक है, very simple. Now let's take another example. That is 5 minus 7 whole cube. First का ये f वाला है आपका 5 minus 1 upon 7 whole cube. First we have to solve this bracket part, then we will open the cube. LCM is 7, 7 5 is 35 minus 1 is equal to 34 upon 7 whole cube. 34 upon 7 whole cube. This means we have to multiply 34 upon 7 how many times? Yes, 3 times. 34 upon 7 into 34 upon 7. This means 34 into 34. 34, 34. 4 4 is 16, 4 3 is 12, and 1 13. 3 4 is 12. 3 is 9 1 10. So 6, 3 plus 2 5 1 1. We have to multiply one more time 34. So 4 6 is 24. Carry 2 4 5 is 28, 2 22 4 is 4, and 2 6 4 is 4 18. Carry 1 3 5 is 15, 1 16. Carry 1 3 is 3, 1 4 3 is 3. How much? 4 8 plus 2 10. 6 6 12 1 13. Carry 1 4 plus 1 5 plus 4 9 3. This means 34 into 34 into 34 is equal to 39304. 39,304. And then we will multiply 7 3 times. We get 7 7 49, 7 343. How much? Let's see. 49 into 7 7 9 is 63. 7 4 is 28, and plus 6 34. 343 means 34 upon 7 whole cube gives 39,304 upon 343. In this way we can find any numbers cube. Okay. Now move to the next question.
Question number second. Find the odd numbers to be added to get the following cubes. Means we have to write odd numbers to get. We have to add odd numbers to get the following cubes. First one, 5 cube. Okay. 5 cube means we know that 5 into 5 into 5. This gives 125. Now we have to write 5 odd numbers. Here it is 5. Therefore, we have to write 5 odd numbers. Okay. Then we will add those odd numbers, and our sum have to be 1 to 5. Means 125. Let's see how we will do. First, find out the square of 5, which is 25. Square of 5 is 25. Add 4. Why? We have to add less than 1. जिस नंबर का भी क्यूब आपको निकालना है उससे एक कम, पहले उसका स्क्वायर निकालिए, फिर उस नंबर से एक कम उसमें ऐड कर दीजिए. मींस 5 का स्क्वायर 25 एंड 5 से कम कितना हो गया आपका 29. दिस मींस वी कैन राइट 5 क्यूब इज इक्वल टू, पहला ऑर्डर नंबर आपको मिल गया 29, फिर इससे कम करते जाइए. ठीक है, 29 देन 27 देन 25 देन 23 देन 21. जिसका क्यूब निकालना है, जितने 5 का निकालना है, तो 5 ऑड नंबर आपके होने चाहिए. ठीक है, तो पहला ऑड नंबर आपका यहां से मिल जाएगा, फिर बाकी के आप उससे कम कर दें. 29 के बाद 29 से कम 27, फिर 25, 23, 21. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं. इसके 10 का क्यूब देखिए. जैसे यहाँ पे 10 का क्यूब लिखा हुआ है, वी नो दैट 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000. आप इसको ऐड करिए, आपका सम देखिए 125 होगा. कितना होगा आपका 125. 10 क्यूब मींस 1000. तो फर्स्ट वी विल फाइंड 10 स्क्वायर ऑफ 10 व्हिच इज 100. स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड ऐड 1 लेस देन द गिवन नंबर. तो 10 minus 1 9. This gives 109. Means our first odd number is 109. So 10 cube is equal to 109 plus 107 plus 105 plus 103 plus 102, sorry 101 plus 99 plus 97 plus 95 plus 93 plus 91. 10 और नंबर होने चाहिए आपके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आप इनको ऐड करेंगे तो आपका सम कितना होगा? यस 1000. ठीक है. One more, 9 cube. So in this way you can also find the cube of 9. Understood? Now move on to the next question. Next question is, which of the following are the cube of the even number? We have to find that the given number is cube of any number. We have to determine that whether it is the cube of even number or not. First one, question number 3, 64. We know that cube root of 64. देखिए जब हम स्क्वायर निकालते हैं, ठीक, मतलब क्या करते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 2. दिस मींस 2 into 2 is equal to 4. ठीक है, इसका उल्टा हम कर देते हैं. मींस स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम कुछ ऐसा लिखते थे. ठीक है, क्या करते थे हम? अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 मींस 2 into 2, और अंडर रूट की कोई वैल्यू 2 वाली होती है तो हम उसको क्या करते हैं, एक बार बाहर लिख देते हैं. दिस मींस अंडर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 and square of 2 is 4. In the same manner, cube, suppose we have to write a 3 cube, so 3 into 3 into 3, this gives 27. And the cube root, how we write cube root? Here we will write 3. अंडर रूट बनाएंगे आप, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, थोड़ा सा 3 लिख देंगे. और इसका क्यूब रूट निकालना है हमको 27. This means cube root of 27 means 3 into 3 into 3. स्क्वायर रूट में आप दो का पेयर लेते हैं, क्यूब रूट में आप 3 का पेयर लेंगे. अगर कोई नंबर 3 बार लेंगे, 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम एक बार क्या कर लेंगे, बाहर लिख देंगे. ठीक है, तो ऐसे ही हमने चेक किया. 64 किसका क्यूब रूट है आपका? 4 का. 4 into 4 into 4, 64 is equal to 4 cube. 4 to 4 into 4. 4 4 is 16, 16
इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तो यस 64 is the cube of even number। 64 is the cube of even number। 64 किस चीज का क्यूब है? आपका इवन नंबर का क्यूब है। एक और देखते हैं 1331 1331। ठीक है, इसका आप क्यूब निकाल सकते हो। क्यूब कैसे निकालेंगे? देखिए एक बार देख लीजिए आप। स्क्वायर रूट में एलसीएम निकालते थे, इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। तो 1331 एलसीएम मींस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये किससे जाएगा? किससे डिवाइड होगा? 11 से। 11 में 11 11 में 22 11 में 11 11 में 11 11 में 11 में 11। This means we can write 1331 11 cube। 11 into 11 into 11 is equal to how much? 1331। तो 1331 1331 किसका क्यूब है? आपका 11। 11 क्या है आपका? इवन है? नो, इट इज ऑड। सो वी विल राइट हियर नो 1331 is not the cube of even number। Even number 1331 is not the cube of even number। Move on to the next question। Which of the following are the cubes of the odd numbers? Same method है आपका बिल्कुल। Question number 4, first one 343। सबसे पहले फाइंड करिए किसका क्यूब है। मींस फर्स्ट वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर। वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन। 343 ठीक है। 7 नाउ 7 7 4 जा 7 4 जा 28 7 9 जा 63 7 7 जा 49 and 7 जा 7। This means it is a cube of 7। किसका क्यूब है ये? 7। ये 3 टाइम्स आ रहा है आपका, हम 1 टाइम्स लिख लेते हैं क्यूब में। ठीक, तो 7 into 7 into 7 gives 343। This means yes, it is a cube of odd number। 7 is odd number, therefore we will write here yes 343 is the cube of odd number। Let us take one more part। C 216 216। In the same manner we have to find the cube that which number cube is this। So we will get here 6। 216 is the cube of 6। So 6 into 6 this gives 216। now 216 किसका क्यूब है आपका? 6। This means no, 216 is not the cube of yes odd number, not the cube of odd number। Understood? Next question, question number 5। State the unit digit of the cube of the following numbers। Question number 5 is state the unit digit of the cubes of the following number। Here we have to find that what will be the unit digit if we find the cube of any number। Suppose here it is a 127 cube, means take an example 3 cube। 3 cube means 3 into 3 into 3 27। तो what is the unit digit of the given cube? 7। मतलब इसका क्यूब निकाल कर इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7। In the same manner we have to find the unit digit of the given number, but here we will not find the cube, means we will not multiply 1 to 7 3 times। Understood? We will not multiply 1 to 7 3 times। I am giving you trick, you can say। If we find, you have to find only first digit, unit digit cube। Okay, if we find cube of 1, लास्ट में जो लिखा है यूनिट डिजिट जो लिखा हुआ है उसका क्यूब फाइंड करिए। ठीक है, अगर लास्ट में 7, देखिए मैं आपको मेथड बताता हूं। पहले
अगर आप क्यूब फाइंड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अगर लास्ट यूनिट डिजिट आपका 2 है तो इसका क्यूब कितना आएगा आपका 8। यूनिट डिजिट आपका 3 है तो इसका क्यूब कितना आएगा आपका 7। यूनिट डिजिट अगर 4 है तो क्यूब कितना है, क्यूब निकालने पे यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका भी 4 आएगा। 5 5 6 6 7 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 3 आएगा। अगर आप 8 का क्यूब निकालते हैं तो 8 का यूनिट डिजिट कितना आता है आपका 2। 9 का निकालते हैं तो 9 का यूनिट डिजिट कितना आता है 9 आता है। कितना आता है 9 आता है, अंडरस्टूड। और 0 का निकालते हैं तो कितना आएगा 0। तो सिंपल है। अगर लास्ट में ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 0 2 1 पूरा दिया हुआ है, अगर 0 2 1 अगर आपको दिया हुआ है तो सीधे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपका इसका क्यूब निकालने पे यूनिट डिजिट क्या होगा। दिस मींस 127 का अगर हम क्यूब निकाले तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यस 7 है तो 7 का होता है आपका कितना 3। 7 का कितना हो जाएगा 3। तो यूनिट digit of 127 whole cube is how much? Yes 3। वेरी सिंपल, बस इतना सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसका, चलिए 498 to the power 3 means 498 cube। आई वाला पार्ट है आपका 498 cube, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट digit of 498 whole cube is 8 है। 8 का कितना होता है आपका 2। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 2, अंडरस्टूड। तो बाकी भी इसके सारे पार्ट आप कर सकते हैं, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज state which of the following are perfect cube. In case of a perfect cube, find the numbers whose cubes are the given numbers. We have to check whether the given number is perfect cube or not. If it is perfect cube, then we have to find the cube root of the given cube. First 576. Question number 6, first part 576. So in this question, first we will do prime factorization for the given number. So 5 7 6 to 2 to the 4 1 7 2 8 is 16 1 8 1 6 2 8 is 16 2 1 is 2 2 4 is 8 2 4 is 8 2 7 is 14 2 2 is 4 2 3 is 6 2 6 is 12 2 1 is 2 2 8 is 16 2 9 is 18 3 3 is 9 3 1 is 3, ठीक है। तो 576 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 times 2 2 2 2 2 2 2 how many times 6 times 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and 3 2 times. To check whether the given number is perfect cube or not, we have to check that in the prime factorization of the given number should be the pair of 3. कितने कितने का पेयर होना चाहिए, 3 3 का पेयर होना चाहिए। लेकिन 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 3 टाइम्स आ रहा है, बट 3 कितने टाइम्स आ रहा है, पर 2 टाइम्स। दिस मींस this implies that 576 is not the perfect cube, is not the perfect cube, understood? Very simple. Next question, 37044 37044. Question number 6 का B पार्ट है आपका 3704. Find prime factorization. 2 1 is 2 1 7 2 is 16 2 5 is 10 2 2 is 4 2 2 is 4 2 9 is 18 2 2 is 4 2 6 is 12 2 1 is 2. 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 1 है, चेक करिए 3 से होगा कि नहीं। तो 6 plus 1 plus
3 जा 9, 2 होगा नहीं, 0 रहेंगे, 2 6, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 7 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 14, 7 जा 7. This means prime factorization of 37044 is 2 times 2, 3 times 3, 3 times 7. ठीक है, यहाँ देखिए 3 का पेयर है आपका, 7 का पेयर है, बट 2 का पेयर, 3 पेयर्स मतलब 3 times 2 नहीं है, 3 भी 3 times है, 7 भी 3 times है, बट 2 3 times नहीं है। तो अगर सारे नंबर आपके 3 times हैं तो ये परफेक्ट होगा, अदरवाइज नॉट। तो हेंस 37044 is not perfect cube. क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और ले लीजिए, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज 8000। कितना दिया हुआ है आपका? 8000, ठीक है। 2 4 जा 8, 0 0 0, 2 2 जा 4, 0 0 0, 2 1 जा 2, 0 0 0, 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10. Now 5 into 5, 5 जा 10, 5 जा 25, 5 जा 25 and 5 जा 5. तो इसका क्या हो गया आपका? 8000 is equal to 6 times 2, 1 2 3 4 5, 6 times 2 and 3 times 5, 1 2 3, कितने टाइम्स? मीन्स 2 देखिए 3 टाइम्स आ रहा है, अगेन 2 3 टाइम्स आ रहा है, 5 3 टाइम्स आ रहा है। दिस मीन्स एंड 8000 is perfect। 8000 क्या है आपका? परफेक्ट क्यूब। क्लियर? अब ये परफेक्ट क्यूब है तो ये 8000 किसका क्यूब है ये भी हमें फाइंड करना होता है। इसका मतलब क्या फाइंड करना होता है? इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है। तो क्यूब रूट ऑफ 8000, इससे पता लगेगा आपका कि कितने परफेक्ट क्यूब है। तो क्यूब रूट इधर लगाया, इधर क्यूब रूट लगाइए। क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 3 6, 5 into 5 into 5, ठीक है। जो 3 टाइम्स लिखे हुए हैं उसको एक टाइम्स बाहर ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 1 ये भी एक बार आ जाएगा, 1 ये भी कितना हो गया? 2 to 4 5 जा 20। दिस मींस 8000 किसका क्यूब था? आपका 20 का। अंडरस्टूड? Now which of the following are the cubes of the negative integer? Negative integer क्यूब कौन सा है? तो जो नेगेटिव क्यूब होंगे वो आपके नेगेटिव इंटीजर के होंगे, ठीक है। जिसमें नेगेटिव होगा वो नेगेटिव इंटीजर के होंगे और जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव इंटीजर क्यूब होंगे। ये तो सिंपल है। अगर -64 लिखा हुआ है, दिस मींस -64 इज द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। हाउ? सी हियर, सपोज लिखा हुआ है -64, पूछा गया ये नेगेटिव इंटीजर का है कि नहीं? यस, आपको पता है 64 होता है 4 into 4 into 4। अब यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो -4 -4 -4 4 4 64 जा 64 तो हो गया आपका। माइनस माइनस प्लस, प्लस into माइनस माइनस, देखिए आ गया। दिस मींस -64 इज द क्यूब ऑफ द नेगेटिव इंटीजर। तो जो नेगेटिव लगा वो नेगेटिव इंटीजर का होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 385875 to make it perfect cube? Question number 8, 385875।
3a5875 means it is not perfect. We have to find that which smallest number we multiply in this to get the perfect cube. So let's see. Find prime factorization of the given number 3a5875. 2 से तो जाएगी, 3 से चेक करिए. 5 plus 7 12, 12 plus 8 20, 20 plus 5 25 plus 3 28, 28 plus 8 36. This means it will be divisible by 3. So 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 5, 3 जा 24, 1 8, 1 8, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. Again 5 plus 2 7, 7 plus 6 13, 13 plus 8 21 and 3, 21 and 3, yes 24. Okay, divisible by 3. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 2 6, 3 8 जा 24, 2 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. 5 plus 7 12, 12 plus 8 20, 20 plus 2 22 plus 40. It will be not divisible by 3. Now we will divide this by 5. 5 8 ja 40, 5 5 ja 25, 2 8 3 7. 5 7 ja 35, 5 5 ja 25. 5 ja 5, 3 5 5 ja 35, 5 ja 5, 5 5 ja 25. 5 3 ja 15, 2 1 5 12 20, 5 3 ja 15. Now 7. 7 4 ja 28, 7 9 ja 63, 7 7 ja 49 and 7 ja 7. ठीक है, तो देखिए कितनी यहाँ पे 3 8 5 8 7 5. क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 times 3, 3 times 5 and 3 times 7. देखिए 7 का पेयर है आपके पास, 5 का पेयर है लेकिन 3 का पेयर नहीं है. अगर हमने इसमें एक और 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका पेयर हो जाएगा. दिस मीन्स 3 is the smallest number which multiplied by 3 8 5 8 7 5 to get a perfect cube. एक परफेक्ट क्यूब पाने के लिए इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका जो मल्टीप्लाई होगा इसमें? यस 3. जिसका पेयर नहीं बन रहा, जितना कम है, अगर यहाँ 2 3 कम होते तो हम 9 से मल्टीप्लाई करते. 2 3 मींस 3 3 या 9. ठीक है, यहाँ 1 3 कम था इसलिए हमने 3 से किया. सपोज यहाँ पे 5 भी कम होता और यहाँ 3 भी कम होता. ठीक है, तो यहाँ 3 और 5 मतलब 3 5 क्या 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं. अंडरस्टूड? तो सिर्फ इसमें यही बताना कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए. क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, आपको ऐसे निकालना है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 704 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट मे बी अ परफेक्ट क्यूब. डिवाइड करना है. सपोज जैसे इसका पेयर बना है, इसका पेयर बना है, इन दोनों का पेयर है, इसका पेयर नहीं था तो हमको डिवाइड करने के लिए पूछा. जब मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेंगे जितना पेयर कम हो रहा है कंपेयर करने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमें डिवाइड करना है तो जो पेयर एक्स्ट्रा है, इन दोनों पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर कंप्लीट नहीं है तो ये 3 3 9 एक्स्ट्रा है तो हम क्या कर देंगे 9 से डिवाइड कर देंगे. अगर डिवाइड करने को पूछा है तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अगेन परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट भी ऐसे करिएगा. Is 1728 is a perfect cube? If yes, find the number whose cube is 1728. 10 वाले में चेक करिए 1728 आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. अगर है तो किसका क्यूब है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is find the volume of cube whose total surface area is 96 meters square. Is the numerical value of the volume of volume of a perfect cube. Very easy question. Question number 11. Total surface area of cube is given. Total surface area of cube कितना दिया हुआ है आपको? 96 मीटर स्क्वायर. कितना दिया हुआ है आपको? 96 मीटर स्क्वायर.
तो हमें निकालना है क्या इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यस 6a²। व्हाट इज a हियर, a इज साइड ऑफ द क्यूब, a क्या हो जाएगा आपका साइड। तो 6a² का टोटल सरफेस एरिया ये गिवन है आपको कितना है 96। सबसे पहले आप साइड फाइंड करो, तो a² 6 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में चला जाएगा राइट हैंड साइड 96/6। तो 6 मतलब 6 3 6 6 6 36। तो a² is equal to 16। This means a is equal to स्क्वायर को राइट साइड लेंगे अंडर रूट 16, a is equal to 4। मींस साइड कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। साइड कितनी होगी इसकी 4 मीटर हो गई। तो साइड ऑफ क्यूब मिल गई हमको, साइड ऑफ क्यूब is equal to 4 मीटर। We have to find volume of cube। Volume of cube, what is the volume of cube, a cube। a cube means side cube। तो side cube means side आपका 4, 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है आपका, यस 64। 4 into 4 into 4, 4 4 to 64 to 64। यूनिट जरूर लगाइए आपका, क्यूब है तो मीटर क्यूब, एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया था तो मीटर स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस होती है तो आपकी लेंथ होती है तो आपकी क्या लिखते हैं हम मीटर लिखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Prove that if a number is double, then its cube is 8 times the cube of the given number. Question number 12. Question is given. Suppose side of cube is a। हमने लेट कर दिया कि साइड ऑफ क्यूब क्या है आपका a। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब मींस a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा आपका a क्यूब। गिवन क्या है कि अगर हमने साइड को डबल कर दिया, दिस मींस न्यू साइड। न्यू साइड में क्या करते हैं डबल, डबल मींस 2a, डबल करके ट्वाइस। तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको प्रूव करना है कि वो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो न्यू वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब। साइड क्यूब मींस देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका साइड क्यूब, न्यू साइड आपकी 2a, तो 2a का क्या हो जाएगा आपका क्यूब। 2a का क्या हो जाएगा क्यूब। 2a क्यूब मींस मल्टीप्लाई 2a 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 8 a क्यूब। तो a क्यूब क्या था आपका वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब जो पहले क्यूब था। तो यहां लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 8 into a मींस ऐसे लिख लीजिए आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अंडरस्टूड। मींस अगर हमारे पास साइड a है और उसकी वॉल्यूम कितनी मिलेगी a क्यूब, साइड को डबल कर दिया जा रहा है, ठीक है 2 टाइम्स मींस 2a। तो उसका न्यू वॉल्यूम जब निकालेंगे वो न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आपका क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। ये प्रूव करना है। अंडरस्टूड। So exercise 4.1 is over. Hope you have understood this exercise very well. Still, if you have any doubt, you can ask me in the comment section, or you can also ask your queries in our WhatsApp group. If you still not subscribe our channel, then please go to subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of all videos. Thank you. Have a nice day.